ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ, ਪਿੰਡ ਮਹੇਸਰੀ। ਇਹ ਸਾਥੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਸਾਥੀ ਸ਼ਸ਼ੀ। ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਏ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਵੇਂ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗੰਦ ਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਡੱਬਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਈਗੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੂਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਮੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ नहीं है। सरकार समझ लवे उन्ना ही चंगा। वैसे भी मैं ये कह रही थी कि वैसे भी ये कोई नई बात तो है नहीं, क्योंकि सरकार जितनी भी जन विरोधी कानून लेकर आया है वो किसी ना किसी को इस लेवल तक हार्म किया है कि वो या तो उनकी जान चली जाए या नहीं तो सरकार की बात मान ले। किसान के मामले में भी यही हो रहा है। 15 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि एक एक ज़िंदगी बहुत कीमती होता है और सरकार को अगर ये नहीं लगता है तो सरकार इस जनता की नहीं है। फिर ये बात हमें और इस देश की जनता को मान लेने की ज़रूरत है। और ये पहली बार नहीं है कि किसान को परेशान किया जा रहा है। वो सड़कों पर आए हैं, इससे पहले भी इस देश के स्टूडेंट सड़कों पर थे, उसके पहले भी इस देश के नौजवान सड़कों पर थे, कभी बेरोजगारी का मुद्दा लेकर, कभी शिक्षा का मुद्दा लेकर। इस तरह के हालात बनाएगा। अब तो नागरिकता का जो कानून आया था पिछले साल, हम सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर और देश की सड़कों पर किस तरह लोग निकले हुए थे। तो ये जो लोगों में जो परेशानियां हैं, उनका जो असंतोष है, वो हमें सड़कों पर लाकर खड़ा कर रहा है और इसका जवाब हमें सरकार से चाहिए। इसलिए भी जवाब चाहिए कि सरकार जो बनती है वो जनता से बनती है और जनता के लिए बनती है। तो ये अगर नहीं होता है तो सरकार कॉरपोरेट के लिए अगर बनी हुई है तो सरकार को ये बोलना पड़ेगा कि हम कॉरपोरेट के लिए हैं। फिर उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे और उन्हें इस देश को, इस सत्ता की जो गद्दी पर वो बैठे हैं उसे छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है।
केंद्र सरकार का एक तरफ ये मानना है कि हम तो किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वही हमें जो है मतलब एक बात नहीं आने दे रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए राजी नहीं। इसके बारे में आपका क्या कहोगे? दोहरी बातें नहीं हो सकती है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, कहने को वो बात करते भी हैं, और एक तरफ कृषि मंत्री कहते हैं किसी भी हालत में हम ये कानून वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये दो बात नहीं चल सकता ना। या तो आप बातचीत में आकर एक बीच का रास्ता निकालोगे ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, आप कॉरपोरेट के गोद में बैठ के अगर आप डिसीजन लेते हैं, तो सारी जनता को ये समझ में आ रहा है कि आप जनता के लिए सोच भी नहीं रहे हैं। काम करना तो बहुत दूर की बात है, तो आप सोच भी नहीं रहे हो। और अगर आप सोच नहीं रहे हो, अगर आपकी नीयत नहीं है, अगर नीयत में ही कॉरपोरेट का भलाई करना है, तो फिर आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते हो। ये देश की जनता, देश के किसान समझ रहे हैं, और इसीलिए आज वो सड़कों पर हैं। पर एक तरफ देखा जाए कि इन्हीं किसानों को, इन्हीं मासूम लोगों को जो है आतंकवादी बोला जा रहा है। जो ये बुजुर्ग यहाँ पे जो ये आतंक फैला रहे हैं ना, लंगर लगा रहे हैं, इनकी सेवा करें, इनको आतंकवादी बोला जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहूंगी कि आतंकवादी संगठन से उठकर देश की गद्दी तक पहुंचने वाले ये लोग दूसरों को आतंकवादी बोल रहे हैं, और ये भी कोई नई बात नहीं है। इससे पहले अर्बन नक्सल के नाम पर, देशद्रोह के नाम पर कई मासूमों पर ये तमगा लगा चुके हैं। ये जो इनका अवार्ड है, रिवार्ड है, वो दे चुके हैं। तो आज किसानों को ये खालिस्तानी बोल रहे हैं। तो इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, ज़्यादा बोलने की इस पर जरूरत भी नहीं है, कि इनके ही शागिर्द बनकर, इनके ही अपने बनकर आतंकवादी हमारे देश में और दिल्ली में घुस रहे हैं, तब तो इनको नहीं दिखता है, तब वो नहीं रोक सकते हैं। देवेंद्र सिंह की गाड़ी में क्या हुआ, कौन नहीं जानता है इस मामले को? तो देवेंद्र सिंह के साथ आतंकवादी दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, ये उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो मासूम लोग, जो किसान देश के यहाँ रोड पर बैठे हैं, वो उनको खालिस्तानी नजर आते हैं। तो एक बात उनको समझ लेना चाहिए कि देश के लोगों को खालिस्तानी, आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े बोलकर ये भटका नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये दिल से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जिंदगी से जुड़ा हुआ आंदोलन है। किसानों के जीने और मरने का सवाल है, और किसानों के नहीं, मैं ये कहूंगी, क्योंकि ये वर्ड गलत है कि सिर्फ किसानों का लड़ाई है ये, क्योंकि किसान किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में, किसी भी गांव में जो होते हैं, वो अन्नदाता होते हैं, और अन्न से तो पूरी दुनिया जुड़ी हुई है ना। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सभी लोगों का आंदोलन है। अगर किसान है तो किसी परिवार का है, उस परिवार में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग हैं, नौजवान भी हैं जो रोजगार करते हैं, शिक्षा पाते हैं, तो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि किसान का अलग आंदोलन है, स्टूडेंट का अलग आंदोलन है, नौजवान का अलग आंदोलन है, महिला का अलग नहीं। सभी आंदोलन एक है, और इसलिए ये आंदोलन है क्योंकि ये सरकार जन विरोधी है, और जब वो जन विरोधी है तो हम इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाकर रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें कि कुछ जो हरियाणा से लोग आए हैं, पंजाब से, इनको तो मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप दिल्ली से आए हो, तो आपको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? हमें तो तब से मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब से ये सरकार आई है। हम तो पता नहीं कितनी बार इनकी लाठियां, गोलियां और वाटर कैनन खा चुके हैं, क्योंकि हम तो कोई भी अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो ये तुरंत हम पर लाठियां बरसाने लगते हैं। हम लोग निर्भया की बात को लेकर 12 में उतरे थे, तब भी हम पर लाठियां बरसाई गई थी, जब पहले की सरकार थी, ठीक है, लेकिन हमारी बात सुनी गई। लेकिन जब से ये सरकार आई है, यूपी से लेकर दिल्ली तक हम लोग पर लगातार लाठियां बरसाई गई। आप जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी का तो नाम जानती होंगी, वहां पर जब हम लोग अपने हक अधिकार की बात करते रहे तो हमें देशद्रोही कहा गया, और जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की गई। जब हम नागरिकता संशोधन पर बैठे लोगों का सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए गए, तो हमें अर्बन नक्सल और देशद्रोही कह के फिर से हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई, हमें गिरफ्तार किया गया। ये कोई दिल्ली वालों के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैं बस इतना समझती हूँ कि अगर आप पढ़े लिखे लोग हो, अगर आप इस देश की जनता हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलो, और यही काम दिल्ली में ज़्यादातर जनता करती है। दिल्ली के लोग डरते नहीं हैं इस सरकार से, या देश के लोग डरते नहीं हैं, वो इस देश के संविधान का सम्मान करते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। जिस जगह पे गलती से ये सरकार जाके बैठ गई है, तो उनको ये समझाना पड़ेगा कि ये जनता जो है, जनता से सरकार बनी है, सरकार से जनता नहीं बनी है। ये बात उनके जहन में, उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये चीज़ उन्हें जल्द से जल्द समझ में आ जाए। संविधान से हमारे देश को चलाया जाए। जिस तरह से असंतोष लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, परेशान होके होके सड़कों पे आ रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि ये क्रांति इस सड़क से उठकर संसद पर चली जाए, उससे पहले वो संभल जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संसद पर, इस बॉर्डर से संसद पर जाने में देर नहीं लगेगा, और उसके बाद इस देश की फोर्स, इस देश की पुलिस, कोई भी इस जत्था को, इन लोगों को नहीं रोक पाएगा। हमें संसद तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे। फिर दूसरे देश का जो हाल हुआ है, इस देश में मोदी सरकार का वो हाल हो जाएगा। ये मैं कहना चाहती हूँ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕੂਗੀ, ਵਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PTN 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।